ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਰ ਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫਿਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ 2 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਕਿਤ ਉਦਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ, ਰਾਹੁਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ? ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो नेता है वो हरियाणा के सभी पहुंच चुके हैं। वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, प्रभारी जो है विवेक बंसल वो आ चुके हैं, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, सभी लोग आ चुके हैं। कैप्टन अजय यादव, सभी नेता पहुंच चुके हैं। और अब राहुल गांधी का इंतजार है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पूरी तरह से पुख्ता प्रबंध पुलिस प्रशासन की ओर से भी किए गए हैं। और जो टकराव की स्थिति थी वो होती हुई नहीं दिख रही है। वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि हरियाणा सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि ट्रैक्टर रैली लेकर के अगर राहुल गांधी पंजाब से हरियाणा में एंटर करेंगे तो उन्हें एंटर नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन वो अपने काफिले के साथ आएंगे, अपने जो टारगेट है उसी के साथ आएंगे और पेहवा में आकर के और फिर वो ट्रैक्टर रैली शुरुआत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति उत्पन्न होती एक टकराव की, वो स्थिति उत्पन्न होती हुई अभी तो हालांकि नजर नहीं आती है। तो नेता पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी का इंतजार है। राहुल गांधी किसी भी समय यहाँ पहुंच सकते हैं और जैसे ही राहुल गांधी आएंगे तो उसके बाद ये यात्रा शुरू होगी। जी अंकित, तो लगातार नजर बनी हुई है इस खबर पर। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। यानी कि जाहिर तौर पर ट्रैक्टर रैली तो नहीं करन दित्ती जाएगी ज्यादा वड्डे काफिले दे नाल। फिलहाल किस तरह दी तस्वीरां बनदियां ने, किस तरह के हालात बनते हैं जो राहुल गांधी इत्थे पहुंचते हैं, ये लगातार नजर बनी हुई, वो भी अपने दर्शकों को दिखावांगे।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा के अंदर आ रहे हैं और हरियाणा में क्या क्या तैयारियां हैं कांग्रेस नेताओं के द्वारा और क्या क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है, हमारे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज राहुल गांधी आ रहे हैं, 2 दिन अभी 3 दिन वहाँ पंजाब के अंदर लगाए हैं, किस तरह की हरियाणा के नेताओं की तैयारियां हैं, किस तरह का प्रोग्राम रहने वाला है? हरियाणा की जनता की तैयारी है, कांग्रेस पार्टी की समस्त कांग्रेस जनों की तैयारी है। सबको बहुत खुशी है कि हमारे नेता हमारे बीच आ रहे हैं, लोगों की जन समस्याओं को उठाते हुए, लोगों की बातों को सुनने के लिए, गरीब की, किसान की, मजदूर की बात को सुनने के लिए। सब में बेहद उत्साह है, बेहद खुशी है। किस तरह का प्रोग्राम आज रहने वाला है, क्योंकि पहले 2 दिन का प्रोग्राम था, 3 जिले कवर करने थे, फिर 2 जिले हुए, अब 1 जिला रह गया है, किस तरह का प्रोग्राम है? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि 1 दिन का कार्यक्रम उनका क्लियर था और उसकी हमें अनुमति मिली थी, वो हमने प्रोग्राम कर दिया। लेकिन हमने इस उम्मीद में कि हम उनको 1-2 दिन और रोक पाएंगे, तो हमने अपना प्रोग्राम अपनी ओर से तैयारी की थी। लेकिन उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं, इसलिए 1 दिन के बाद अभी वो स्वीकृति नहीं दे पाए। और राहुल गांधी जी हमेशा आम जनमानस के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी पंजाब बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली के द्वारा हरियाणा में प्रवेश करेंगे या हरियाणा में ट्रैक्टर रैली शुरू होगी? ट्रैक्टर रैली हमारी यहाँ हरियाणा में शुरू होगी, पंजाब से वो प्रवेश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हरियाणा सरकार इतनी डरी क्यों हुई है राहुल गांधी जी से, इतनी घबराई क्यों हुई है राहुल गांधी जी से। आपको क्या लगता है? क्या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? आपके यहाँ सरकार है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। क्या राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार से बात नहीं करना चाहते? आप क्यों ऐसा दिखा रहे हैं कि इस देश में ऐसा माहौल आप पैदा कर रहे हैं हरियाणा राज्य में? इस तरह की धमकियां एक लोकतंत्र में, एक प्रजातंत्र में, क्या बात है? हमेशा इस तरह की आप बात करते हैं, जहां मुद्दा नहीं होता आप बिना बात के मुद्दे क्रिएट करते हैं। एक ध्यान बांटने के लिए पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी की, ध्यान बांटने के लिए खुद बैकफुट पर हैं इन 3 काले कानूनों को लेकर, क्योंकि जानते हैं कि जनता इनके साथ नहीं है, तो उससे ध्यान बांटने के लिए बिना बात के हौवे पैदा कर रहे हैं। ਤਾਂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैक्टर रैली की जाएगी। यानी कि कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है, पर उधरों पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है, हरियाणा सरकार भी तैयार है कि ट्रैक्टर रैली नहीं करन दी जाएगी, ज्यादा इकट्ठ नहीं करन दिता जाएगा हरियाणे दे विच। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ? अमृत, मैं बॉर्डर पर मौजूद हूँ, कुरुक्षेत्र में मौजूद नहीं हूँ अभी। यहाँ से बॉर्डर पे जब राहुल गांधी की एंट्री होगी तो उनके साथ साथ हम फॉलो करेंगे और उनको दिखाएंगे कि किस तरह से उनकी यात्रा जा रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बॉर्डर पर किस तरह की तैयारियां हैं। आप देख सकते हैं इंतजाम यहाँ किए गए हैं, किसी भी गाड़ी को अभी नहीं आने दिया जा रहा है
और वो ना किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से इंतजाम किए हुए हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वाई पूरन कुमार हैं, आईजी हैं और जो एसपी हैं, वो सब लोग यहाँ आए हुए हैं और वो जायजा ले रहे हैं पूरी इसका। पुलिस केज और होर्डिंग्स लगे हुए हैं पूरी तरह से तैयारी, पुलिस केज और होर्डिंग्स लगे हुए हैं पूरी तरह से तैयारी है। वहीं को हरियाणा के नेताओं की अगर बात करें तो हरियाणा के नेता भी लगभग सभी बड़े नेता पहुंच चुके हैं। वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो, कैप्टन अजय यादव हो, कुलदीप बिश्नोई हो, सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और सभी लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं अभी राहुल गांधी का। और जैसे ही यहाँ राहुल गांधी एंटर करते हैं तो पंजाब से जब एंटर करेंगे तो वो केवल अपने काफिले के साथ एंटर करेंगे, अपना जो टारगेट होता है उसके साथ एंटर करेंगे हरियाणा के अंदर। और पेहवा यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पेहवा है, वहाँ जा करके और फिर ट्रैक्टर रैली बन जाएगी। वो फिर ट्रैक्टर रैली में वो सवार होकर के और आगे की जो यात्रा है वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति थी, जो टकराव की बात थी, वो अब कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि हर गृह मंत्री के द्वारा यह कहा गया था कि पंजाब से अगर राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली लेकर के आते हैं तो उन्हें हरियाणा में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। वैसे अगर आते हैं, अकेले आते हैं, अपने टारगेट के साथ आते हैं तो उनको कोई मना ही नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बात भी कराना चाहूंगा। पंजाब के मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, विजेंद्र सिंगला जी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। विजेंद्र जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी अब पंजाब से हरियाणा एंटर कर रहे हैं, कितनी देर में आप यहाँ पहुंचने वाले हैं? अभी बस जनसभा शुरू होने वाला है। किसानों से जो संवाद था उसकी चर्चा शुरू हो रही है और उसके बाद सभी लोग जो उनके साथी पिछले 2 दिन से लगातार उनके साथ चल रहे हैं, वो सब लोग एक काफले के रूप के अंदर हरियाणा की इस यात्रा को हरियाणा के प्रदेश के अंदर लेकर आए। किसानों से जुड़े बिलों को लेकर के और राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, पंजाब में यात्रा कर रही है, किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है? और अब हरियाणा में लगातार नेता यहाँ सारे पहुंचे हुए हैं, आपके कांग्रेस के नेता, किस तरह की तैयारियां हैं? नहीं, तैयारियां ये जो किसान के 3 काले कानून मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर लेके आए हैं, इन्होंने किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, मंडी में काम करने वाला आड़तिया, ट्रक में काम करने वाला ट्रक ऑपरेटर, फूड ग्रेन एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति को ये तीनों काले कानून ने उसकी कमर को तोड़ा है। इसके साथ आर्थिक कमजोरी आई है, जो आपस में ये सभी वर्गों का प्यार, भाईचारा, सांझ होती थी, उसके अंदर बड़े पैमाने पर दिक्कत आई है। इकॉनमी को डिमोलिश किया है, मंडी स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने की बात हुई है। तो ये हमारे देश के और हमारे प्रदेशों के हित की बात नहीं है और इसके साथ सभी लोगों को नुकसान होगा। तो इस बात को जगाने के लिए, बताने के लिए पूरे पंजाब के अंदर जो पिछले 3 दिन से जो यात्रा चल रही है, उसको हर किसान ने, हर व्यापारी ने, हर छोटे दुकानदार ने उसका सहयोग किया है। उनके दिल की पीड़ा को समझने के लिए, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द के साथ उनके दर्द में हिस्सा लगाने के लिए राहुल जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने दौरा किया है। और आप देखेंगे, और ये यात्रा चलती रहेगी हरियाणा से होकर यूपी तक और उसके बाद राजस्थान तक ये यात्रा चलती रहेगी और लोगों का जो भावना है उसको समझने की बात होती रहेगी। पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार है, तो क्या कोई ऐसा विशेष सेशन बुलाएंगे और इसके बिल के खिलाफ कोई आप लोग? कुछ भी करना पड़े, किसी तरीके से कानून की मदद लेने की बात हो, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसकी पिटीशन को दायर करने की बात हो, हर चीज को हम लीगली एग्जामिन कर रहे हैं ताकि इस जो कानून ये जो बना है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। सो वी आर ऑप्टिंग फॉर एवरी लीगल ऑप्शन अवेलेबल विद अस, एग्जामिनिंग एवरी लीगल ऑप्शन। हमारे एजी और पूरी टीम लगी हुई है और जो सही रास्ता होगा उसको कांग्रेस पार्टी अपनाएगी ताकि मोदी और बीजेपी की सरकार चैन की नींद दिल्ली तक सो ना सके जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा। तो ये थे विजेंद्र सिंगला, आप सुन रहे थे, क्योंकि पंजाब के मंत्री हैं, खुद हरियाणा में बॉर्डर पे पहुंचे हैं और अभी राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। हालांकि कुछ देर अभी लेट हुआ है प्रोग्राम, तो थोड़ी देर के अंदर राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। हरियाणा के जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये मंदिर है, यहाँ मंदिर के अंदर सारे लोग मौजूद हैं, वो
चाहे प्रभारी की अगर बात करें विवेक बंसल वो मौजूद हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, कुलदीप बिश्नोई। वैसे तो हालांकि एक मंच पर ये सब लोग नहीं दिखते हैं, लेकिन आज एक मंच के ऊपर दिख रहे हैं। सब लोग इकट्ठा बैठे हैं, इकट्ठा चाय पी रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में खुश नसीब बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट दिखाई अक्सर नहीं देते हैं, एक मंच के ऊपर नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ आ रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है जी। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਿਤ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। तो राहुल गांधी का 3 दिन का पंजाब दौरा खत्म हो गया है, तो राहुल गांधी हुण हरियाणे वाल रवाना हो चुके ने। तो अज आखिरी दौरा सी राहुल गांधी का पंजाब का, तो इस दौरान जो है अज आखिरी दिन पटियाला दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी वालों की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सने कांग्रेस की लीडरशिप मौजूद रही। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच राहुल गांधी के निशाने ते एक बार फिर तो केंद्र सरकार रही। राहुल गांधी ने मोदी सरकार ते निशाने साधे ते कहा कि ये खेती कानून किसान विरोधी है, ये खेती कानून काले कानून के बराबर है। राहुल ने कहा केंद्र ने MSP नूं खत्म किया है ते किसानां नूं बर्बाद करन दे लई ये कानून बनाया गया है। राहुल गांधी ने भी कहा कि इस दे नाल फूड सुरक्षा सिस्टम ते भी असर पवेगा। ते ट्रैक्टर ते सोफे वाले बयान ते जो सवाल उठ रहे हैं उस ते भी राहुल ने पलटवार किया ते कहा कि देश के नौजवानों नूं रोजगार भी नहीं दिता गया। जैसे आप जानते हैं हमारी ये यात्रा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाया एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाई और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद GST की, और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की, उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे। इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब। और अगर MSP जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा तो पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम एक प्रकार से पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के किसानों की और इसके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अब आप सवाल पूछिए। If you raise hands, I'll go one by one. We'll go with you, Anand ji. Just wait for the mic. You raise hands, I'll note down, and then we'll do it in an orderly fashion. Rahul ji, you are on the खेती बचाओ मिशन, but before this आप बेटी बचाओ मिशन में थे, हाथरस जा रहे थे। हमारे सामने हमने देखा था पुलिस ने कैसे आपको धक्का दिया। उसके बाद प्रियंका जी के साथ हाथापाई हुई। करीब 500 कांग्रेस वर्कर्स के खिलाफ FIR हो गई है, जर्नलिस्ट पे भी FIR हो रही है। योगी सरकार के इस रवैये पर क्या कहेंगे सर? पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। थैंक यू सर। मैं आपसे एक अनुरोध जो धक्का, जो असली धक्का लगा, धक्का छोड़िए, जो अनइमेजिनेबल उस परिवार को लगा। आप सोचिए, आपकी बेटी है,
You have a son. You don't have a daughter, so maybe you will not understand this. People who have daughters will understand it. You might not understand the rape aspect, because that is something that Indian women have to deal with. You will certainly understand the murder aspect. Suppose someone killed your son, and then when you went for justice, they locked you up in your house, and then the DM came to your house and kicked you and threatened you and told you that if you open your mouth, the entire state of Uttar Pradesh will sort you out, and then told you, don't worry, all these protesters, they will go away, Rahul Gandhi will go away, but we will be here. Now you get a feeling, get a sense of how you would feel. That is how that family felt. That is why I went there, because I wanted that family to know that they are not alone. मैं इसलिए वहां गया था और मैंने परिवार से कहा, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। लगातार जिक्र करते हैं कि इसको केंद्र सरकार ने बिना किसानों से सलाह मशविरा किए, बिना पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिए पास करवा दिया। अब चूंकि पंजाब में, हरियाणा के कुछ भागों में भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के लोग हमेशा इसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर पर गद्दा लगा कर यात्रा कर रहे हैं, वो किसानों की क्या बात करेंगे? और अगर वाकई किसान परेशान है देश के दूसरे हिस्सों में, वहां कोई बात क्यों नहीं करता, वहां कोई आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बात क्या है, पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜੋ ਕਾਫਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ।